ओके फाइन। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे बेसिक फंडामेंटल हम सीख चुके हैं। अब हमें करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड का प्योरिफिकेशन मेथड्स, फिर करना है क्वालिटेटिव एनालिसिस, फिर करना है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दिस थिंग्स आर क्वाइट थियोरेटिकल, राइट। तो हर एक थियोरेटिकल पार्ट को हम स्क्रीन पे ले जाएंगे और वहां पे जाके हम इसको नोट्स के फॉर्म में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, सो मेथड ऑफ purification of organic compound, there we go. Chalo, so methods of purification of organic compound. So once an organic compound is extracted from a natural source or synthesized in the laboratory, it is essential to purify it. Various methods used for the purification of organic compounds are based. It is based on the purification technique is based on the nature of the compound and the impurity present in it. So which method to be used? It depends upon the properties of the compound and properties of the impurities. The common techniques that we used, common techniques are sublimation, crystallization, distillation, differential extraction and chromatography. These techniques we are going to study in detail. Finally, the purity of the compound is ascertained by determining its melting point and boiling point, right? How will you get to know whether the compound is pure or not? So to measure whether the compound is pure or not, we check its melting point and boiling point. If it gives you a very sharp melting point and very sharp boiling point, that means the compound has been purified, right? Okay, so the purity is ascertained by determining the melting point and boiling point. Most of the pure compound have a very sharp melting point and boiling points. New methods of checking the purity of an organic compound are based on different types of chromatographic and spectroscopic techniques. लिख ही देते हैं इसको, नीचे छोड़ना क्यों इतने को, है ना। आजा बेटा नीचे आजा। वेट, लाइन चली गई, ये तो गलत हुआ। कोई नहीं, चलो तू आना इधर, हाँ तू पर आ, आगे लाइन वापस। ओके, सो राइट नाउ वी आर चेकिंग द प्योरिटी बाय द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। इसके बारे में भी आगे हमें सीखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले टेक्निक के बारे में समझेंगे। फर्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। वेरी सिंपल, व्हाट डू मीन बाय सब्लिमेशन? समथिंग व्हिच कैन डायरेक्टली कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, वी कॉल इट सब्लिमेशन। तो पहले टेक्निक में ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, इफ योर कंपाउंड इज एबल टू सब्लिमाइन, यू कैन डायरेक्टली हीट द मिक्सचर और हीट द इम्प्योर कंपाउंड। अगर मान लीजिए कि आपको नेप्थेलिन का अगर आपको प्योरिफिकेशन करना है ना, नेप्थेलिन से सब्लिमेबल कंपाउंड, नेप्थेलिन बॉल्स आते हैं ना, वो अपने आप गैस में कन्वर्ट हो जाता है। डामर की गोली डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में, राइट। सो अगर नेप्थेलिन को प्योरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे? नेप्थेलिन को गर्म करेंगे। नेप्थेलिन को गर्म करते ही नेप्थेलिन विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर, impurity will remain as it is, that means impurities are separated. जो वेपर बना है वो सारा किसका होगा? नेप्थेलिन का। that vapor is again condensed back and it will convert to the pure form of naphthalene. Okay, let's see. You have learned earlier that on heating some solid substances, they change from the solid to vapor state without passing through the liquid state. The purification technique based on the above principle is known as sublimation, and it is used to separate the sublimable compound, from the non-sublimable impurity. So we can simply write here, to purify camphor भी डायरेक्ट सब्लिमाइन होता है। तो प्योरीफाई नेप्थेलिन भी डायरेक्टली क्या होता है? सब्लिमाइन होता है। ओके फाइन। सो हम क्या करेंगे? सॉलिड कंपाउंड को डायरेक्टली गर्म करेंगे, सब्लिमेबल थिंग विल डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन एज अ सॉलिड। सॉलिड अपने आप सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम वेपर्स, वेपर को अलग जगह पे ले जाके वापस कूल डाउन करेंगे, वेपर विल बी कंडेंस्ड टू गिव यू द प्योर सॉलिड। ओके, सिंपल टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टेक्निक। ऋतिक इज देयर?
और द नेक्स्ट टेक्निक crystallization. Let's see the method of crystallization, important one. चलो, crystallization. So crystallization is simply based on हो जाए क्लियर हो जाए, हाँ चलो क्रिस्टलाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है. So there are certain substances which can be very easily liquefy. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, राइट. और जब वापस आप उनको ठंडा करोगे, ठंडा होने पे वो क्रिस्टल फॉर्म करेंगे. व्हाट विल दे फॉर्म? दे विल फॉर्म क्रिस्टल्स while impurities remain as it is in the solution. Let's see it. This is one of the most commonly used techniques for purification of organic compounds. सबसे commonly use होने वाला टेक्निक है. It is based on, चलो इसका लॉजिक क्या है? It is based on the difference in the solubility. Difference in the solubility of the compound and the impurity in the suitable solvent. So it is based on the difference in solubility, difference of solubility of the compound and impurities in some suitable solvent. The impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature but appreciably highly soluble at higher temperature. The solution is concentrated to get a nearly saturated solution. Now on cooling the solution, pure compound is crystallizes out and is removed by the process of filtration. The filtrate, a mother liquor, contain impurities and small quantity of the compound. See what will happen. Suppose karo we have the mixture of the two things A and B. Suppose we have the mixture of two things A and B and there is some suitable solvent C. हमने क्या करा, इन दोनों के मिक्सचर को डाल दिया, इनसे हम suitable solvent C में. Now let's say कि solvent C के अंदर A डिसॉल्व हो जा रहा है और B डिसॉल्व नहीं हो रहा है. As for example, suppose solvent C के अंदर if A dissolved, if A dissolved in C and say B does not dissolve, राइट. तो A डिसॉल्व हो चुका है, B डिसॉल्व नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, सिंपली इसको फिल्ट्रेट करो. फिल्टर करने पे B अलग हो गया और जो A हो C के साथ अलग हो जाएगा, बिकॉज A C में डिसॉल्व हो चुका है. कंपाउंड A C में डिसॉल्व हो चुका है, कंपाउंड A C में डिसॉल्व हो चुका है, तो कंपाउंड A C के साथ सेपरेट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में. B सेपरेट होने वाला नहीं है बिकॉज B इज स्टिल इन सॉलिड फॉर्म, राइट. अब हम क्या करेंगे, जो सेपरेट हुआ है इसको उसको ठंडा करेंगे. ठंडा करेंगे तो वापस जो A डिसॉल्व हुआ था उससे क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, राइट. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ शुगर एंड वाटर. अगर आप शुगर को पानी में डालते हो, शुगर विल डिसॉल्व अप टू सम एक्सटेंट, उसके बाद शुगर डिसॉल्व नहीं होगा. बट इफ यू हीट इट, अगर आप उसको गर्म करो मिक्सचर को, इट विल डिसॉल्व सम मोर क्वांटिटी ऑफ शुगर, वो और शुगर को डिसॉल्व कर देगा, राइट. यू प्रिपेयर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर आप फ्रिज में रख दोगे, व्हाट विल हैपन, अगेन द क्रिस्टल ऑफ शुगर विल फॉर्म. क्योंकि जैसे ही सॉल्यूशन वापस ठंडा होगा, शुगर की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जो शुगर डिसॉल्व हुआ था वो शुगर वापस क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएगा. So that same technique you are going to use here in the process of distillation. So read it one more time. What is written here? It is based on the difference in solubility of the compound and the impurities in the suitable solvent. What we will do? A technique says that the impure substance. So technique says that the impure substance, impure compound is dissolved in a solvent in which it is sparingly soluble at room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा, बट अप्रिशिएबली सॉल्यूबल एट हायर टेम्परेचर. अगर आप ज्यादा गर्म करोगे तो कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, राइट. जैसे कि शुगर पानी में डिसॉल्व होता है, गर्म करने से ज्यादा शुगर डिसॉल्व होता है, राइट. ओके, दिस सॉल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड टू गेट अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जैसे आप ठंडा करोगे तो जो कंपाउंड डिसॉल्व हो गया था बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर डाउन होते ही वो कंपाउंड वापस सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल बन जाएगा.
यू गेट दिस, राइट। शुगर के साथ इसको कंपेयर करो, इजीली आपको आइडिया आ जाएगा कि गर्म पानी में अगर शुगर डिसॉल्व करोगे, शुगर ज्यादा डिसॉल्व होगा, बट जैसे ही आप उस सोल्यूशन को ठंडा करोगे, जो शुगर डिसॉल्व हुआ था उसके वापस क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन मेथड। नाउ ऑन कूलिंग द सोल्यूशन, प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस आउट and is removed by the filtration. Pure compound is crystallized and can be removed by filtration process. चलो, जो फिल्ट्रेट बच जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर क्या होगा, सारी इंप्योरिटी फिल्ट्रेट में ही रह जाएगी, कंपाउंड के क्रिस्टल बन जाएंगे, इंप्योरिटीज विल रिमेन इन द सॉल्यूशन ओनली, राइट। चलो आगे, इफ द कंपाउंड इज हाईली सॉल्युबल इन वन सॉल्वेंट and very little soluble in another solvent, crystallization can be satisfactorily carried out in a mixture of these solvents. Impurities which impart color to the solution are removed by adsorbing over the activated charcoal. Repeated crystallization becomes necessary for the purification of the compounds containing impurities of, क्या लिखा है यहाँ पे, impurities of comparable solubility. Okay. Now read the second point. If the compound is highly soluble in one solvent and very little soluble in another solvent, then we can do the crystallization in a mixture of these two solvents. Impurities which impart color to the solution, they are removed by adsorbing over the activated charcoal. You have to do the repeated crystallization if the impurity is also having a similar solubility. अगर impurity का भी solubility similar है तो फिर आपको बार बार crystallization करना पड़ेगा. अगर solubility में difference ज्यादा है तो एक ही बार crystallization करेंगे तो काम हो जाएगा आपका. बट अगर compound की और impurity की solubility almost same है, so in that case we have to do the रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, राइट। तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में इसमें बहुत ज्यादा लिखा है, बट आप सिंपली इसको याद रख सकते हो कि इट इज बेस्ड ऑन, लेट्स मेक द नोट्स ऑफ इट। क्रिस्टलाइजेशन, so it is based on difference in solubility of compound and impurities in suitable solvent as a first point, right, based on difference in solubility. So second point, हम क्या करेंगे, impure compound को dissolve करेंगे, impure compound dissolve in suitable solvent, impure compound dissolved in suitable solvent, right, and the compound is sparingly soluble. So the compound is sparingly soluble at low temperatures. Compound is sparingly soluble at ordinary temperature. Compound is, say, sparingly soluble at ordinary temperature, but compound is highly soluble at high temperature. Compound is highly soluble at high temperature. तो हम सॉल्यूशन को गर्म करके ना सैचुरेटेड कंपाउंड बना देंगे. सॉल्यूशन को गर्म करके जितना ज्यादा कंपाउंड डिसॉल्व हो सकता है उतने कंपाउंड को हम डिसॉल्व करवा लेंगे, राइट. हेंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एट हाई टेम्परेचर. सैचुरेटेड solution is prepared at high temperature. अब जैसे आप इसको कूल करोगे, जो डिसॉल्व हो चुका था वो अगेन क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटी है दैट विल स्टिल रिमेन इन द सॉल्यूशन. ओके, सो ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन, on cooling the solution, on cooling solution, compound crystallizes out
एंड इम्प्योरिटी रिमेन इन मदर लिकर, impurity remains in the solution itself. तो ये आपका सिंपल सा टेक्निक है. ओके, दिस टेक्निक वी आर गोइंग टू यूज. अगर सॉल्युबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है देन यू हैव टू डू द क्रिस्टलाइजेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन. आपको रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ सकता है. अंडरस्टूड जो लिखा है यहां पे. नाउ द नेक्स्ट वन. What is the next technique? Next technique is distillation. maybe distillation भी बहुत सिंपल सा टेक्निक है बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. खासम खास किसका करके रखी है. ओके, लेट्स सी द डिस्टिलेशन प्रोसेस. वेरी सिंपल. आप डिस्टिलेशन तो 9th में भी सीखे थे. सीखे थे. Distillation is based on difference in boiling point. Distillation is based on difference in boiling point. हेलो, let's see this figure. कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेयर है बट आ सकते. ठीक है. See what do we do in the crystallization process? Sorry, distillation process. Distillation is used to separate. It is used to separate volatile liquids from non-volatile impurity, or the liquids having sufficient difference in boiling point. So it is based on difference in boiling point. It is based on difference in what? Boiling point. Okay. Now liquids having different boiling points vaporizes at different temperature. These vapors are cooled and the liquids so formed are collected separately. Let's say the example. If you want to separate the chloroform and aniline mixture, अगर आपको क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को सेपरेट करना है, सो क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट खाली 334 है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट है 457. तो इफ यू हीट द मिक्सचर, who will vaporize first? Obviously chloroform. So the vapor of chloroform will form. This vapor is collected by this condenser. ओके, ये देखो, इसके आजू बाजू एक पाइप है और उस पाइप के अंदर ठंडा पानी एंट्री करेगा और बाहर यहां से पानी बाहर चला जाएगा. मतलब जो भी वेपर इस पाइप में आएगी वो वेपर धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी व्हेन इट पासेस फ्रॉम द पाइप. तो जैसे ही वेपर ठंडी पड़ेगी अगेन इट विल टर्न टू लिक्विड. राइट. तो होगा क्या? व्हेन यू हीट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, अगर यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म एनिलीन मिक्सचर को गर्म करोगे, पहले किसका वेपर बन जाएगा? क्लोरोफॉर्म का. क्लोरोफॉर्म का वेपर जैसे ऊपर जाएगा इस पाइप में से पास होगा, पाइप में से पास होते हुए क्लोरोफॉर्म वेपर वापस ठंडा पड़ेगा, बिकॉज ये पाइप के आजू बाजू क्या है? कोल्ड वाटर है. तो ये जैसे यहां से पास होते हुए वेपर ठंडा पड़ेगा, वेपर विल अगेन टर्न्स टू लिक्विड. क्लोरोफॉर्म यहां सेपरेट हो जाएगा, एनिलीन यहीं का यहीं रह जाएगा. So distillation is based on boiling point difference. Distillation is based on boiling point difference. Crystallization was based on solubility difference. It is based on boiling point difference. जिसका boiling point कम होगा वो पहले वेपर बनेगा, वेपर को हम कंडेंस कर लेंगे, दोनों लिक्विड हो गए सेपरेट. राइट. ओके. The liquid mixture is taken in a round bottom flask and heated carefully. On boiling, what will happen? Vapors of the lower boiling component are formed first. इसका boiling point कम होगा, उसका वेपर पहले बन जाएगा. This vapor are condensed by using a condenser. That pipe is called condenser. जहां पे हम वेपर को वापस ठंडा करेंगे. The vapor of higher boiling point component form the latter and liquid can be collected separately. Right. तो यहाँ पे अगर बहुत सारे अलग अलग लिक्विड भी मिक्स हुए तो उनको भी आप सेपरेट कर सकते हो. जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगा, उससे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बाद में आएगा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा वो अंदर ही रह जाएगा या सबसे लास्ट में वेपर बनेगा. अब यहां पे अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ही क्लोज है, तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. क्या करते हैं हम वहां पे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. कब? व्हेन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लेस. राइट. कंसिडर इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज अराउंड ओनली 10 to 15 केल्विन. बेटा अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 10 से 15 केल्विन है, सो इन दैट केस आपको बहुत ही केयरफुली टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा. अगर 10 से 15 केल्विन का ही डिफरेंस है
तो आपको बहुत केयरफुली टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज गर्म करते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का वेपर साथ में बन जाए. सो इन दैट केस वी यूज डिस्टिलेशन कॉलम. What do we use? Distillation column. Let's say what is a fractional distillation column? It's very simple. Have I taken both the para? Yes. So it's a very simple thing. You can see it here. कितना फायदा हो रहा है स्मार्ट बोर्ड का, फटाफट फटाफट सारे फिगर आ जाते हैं ऊपर. Otherwise I need to draw everything. This is a fractional distillation column. See how it works. Simple distillation ही है, खाली फर्क क्या है बेटा, तो यहां पे ना आपको एक डिस्टिलेशन कॉलम लगाना है. इट इज अ डिस्टिलेशन कॉलम, बाकी सब कुछ सेम ही है. दिस डिस्टिलेशन कॉलम कंटेन्स ग्लास बीड्स. क्या होता है इसके अंदर? ग्लास बीड, कंचे होते हैं इसके अंदर. अब होगा क्या, समझो, लॉजिक समझो. सपोज मान लो कि गलती से दोनों कंपोनेंट का वेपर बन गया. जैसे वो वेपर यहां से पास होगा, ये कंचों में से पास होते हुए वेपर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा. जैसे ही वेपर का टेम्परेचर डाउन होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट वापस क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा. जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, अंडरस्टैंड, सपोज एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से 120 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट है लेट्स से 130 डिग्री सेल्सियस. अब जैसे आपने गर्म किया, जीरो आ जाएगा. आजा जीरो आएगा, आएगा, रुको ना, आएगा. अब जैसे आपने इसको गर्म किया, व्हाट विल हैपन? अभी 2 जीरो हो जाएंगे, देखना. अब बेटा सुनो, जैसे आपने गर्म किया, पहले किसका वेपर बनेगा? ए का, 120 पे. और 130 भी बहुत क्लोज टेम्परेचर है. लेट्स से इसका भी वेपर बन गया. ठीक है. अब सपोज मान लो कि हमसे गलती से टेम्परेचर 132 हो गया था, तो 132 पे दोनों का ही वेपर बनने वाला है. अब ये वेपर जैसे ही ऊपर जाएगा 132 पे, वेपर विल बी कंडेंस बाय दिस कंडेंसर. कौन सा पाइप? ये जो है फ्रैक्शनल कॉलम. ये फ्रैक्शनल कॉलम में पास होते वक्त ये वेपर क्या होगा? कंडेंस होगा. फ्रैक्शनल कॉलम में पास होते वक्त वेपर कंडेंस होगा. यस और नो? अब 132 से जैसे ही वेपर कंडेंस होकर 130 पे आएगा, 130 पे वापस ये क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. और ये लिक्विड बनकर वापस कहां गिर जाएगा? बॉटल में गिर जाएगा. आई बात समझ? मैंने क्या कहा? सपोज टेम्परेचर 132 पहुंच गया, तो 132 पे दोनों का ही वेपर बन गया है. अब दोनों का वेपर यहां से ऊपर जा रहा है. ऊपर जाते वक्त उनको टकराते टकराते जाना है. वेपर थोड़ा ठंडा पड़ेगा. जैसे ही ठंडा पड़ गया, 132 से 130 डिग्री आएगा, 130 पे ये वापस क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा. और अगर ये बी लिक्विड होगा तो लिक्विड कहां गिर जाएगा? वापस नीचे गिर जाएगा, और खाली ए ही बाहर जा पाएगा. दैट्स अ सिंपल लॉजिक ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम. So when you have a very close boiling point, you have to put a distillation column. तो ये कॉलम क्या करेगा? अगर दोनों कंपोनेंट का वेपर बन रहा है, राइट, तो वो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपोनेंट को वापस लिक्विड बना के फ्लास्क में भेज देगा. Let's read this. If the difference in boiling point is not much, if the difference in boiling point of two liquid is not much, simple distillation cannot be used to separate them. The vapors of such liquids are formed within the same temperature range. जब होगा क्या? अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, जैसे मैंने यहां पे लिया है, सो उनका वेपर ऑलमोस्ट एक साथ में ही बन जाएगा, राइट. So the vapor of such liquids are formed within a same temperature range and they are condensed simultaneously. इनका वेपर ऑलमोस्ट साथ में ही बनेगा और कंडेंस भी ऑलमोस्ट साथ में ही होगा. The technique of fractional distillation is used in such cases. In this technique, vapors of liquid mixtures are passed through the fractional column, fractionating column, before condensation. ये कॉलम क्या करेगा? The fractionating column is fitted over the mouth of the round bottom flask. You can see it over there. फ्लास्क के ऊपर क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम है, राइट. चलो, वेपर्स ऑफ लिक्विड इज इंपॉर्टेंट. वेपर्स ऑफ लिक्विड with the higher boiling point condense before the vapors of the liquid with the lower boiling point. This condense first. As I give example to you. Right, one problem. So as I give you the example, this will condense first. जैसे ही थोड़ा सा वेपर ठंडा पड़ेगा, ये पहले कंडेंस होकर लिक्विड बन जाएगा, राइट.
सो हायर बॉइलिंग का जो कंपोनेंट है, दिस विल कंडेंस फर्स्ट, ओके, विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. द वेपर राइजिंग अप इन द फ्रैक्शनल कॉलम बिकम रिचर इन द मोर वॉलेटाइल कंपाउंड. तो ऊपर किसका वेपर पहुंच पाएगा? खाली ए का ही वेपर पहुंच पाएगा. बी का वेपर तो उधर ही कॉलम में ही कंडेंस हो जाएगा. डू गेट दिस? ओके. बाय द टाइम दी वेपर रीचेस टू दी, कुछ थियरी तो पता नहीं क्यों दिया ही है, इतना कचरा दिया ना भर भर के. ओके. So by the time the vapor reach to the top of column, these are reach in the more volatile component. तो जो जो कंपोनेंट हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे वो सारे कंपोनेंट कॉलम में ही नीचे गिर जाएंगे, और जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले वही खाली बाहर तक पहुंच पाएंगे, राइट, ऊपर तक जा पाएंगे. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड डिजाइन. सी वेरियस साइज एंड डिजाइन ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम. इसमें ग्लास बीड लगे हुए, इसमें मेटल के प्लेट्स लगे हुए हैं, राइट. You can see the fractional column here. इसमें ग्लास बीड्स है अंदर, और इसमें कुछ मेटल के प्लेट्स लगे होते हैं इस तरह से. तो यहां से होते होते ऐसे वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाते जाते उसका टेम्परेचर डाउन होगा. टेम्परेचर डाउन होते ही जो लो वॉलेटाइल है, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला, वो तुरंत ही क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. लिक्विड बन के नीचे आ जाएगा, राइट. ओके फाइन, आगे देखते हैं. A fractionating column provides many surfaces for heat exchange. ये fractionating column क्या करेगा? It will provide the surface for heat exchange. Fractionating column provide many surface for heat exchange. Heat exchange between the ascending vapors and the descending condensed liquid. Some of the condensing liquid in the fractionating column obtain heat from the ascending vapors and re-vaporize again. The vapor thus become richer in low boiling components. The vapor of the low boiling component ascend to the top of the column. एक ही बात लिखा है घुमा फिरा के कि जो लो बॉइलिंग वाला है वो ऊपर तक पहुंच पाएगा, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो कॉलम के अंदर ही ठंडे पड़ के नीचे गिर जाएंगे वापस लिक्विड फॉर्म में, राइट. ऑन रीचिंग द टॉप द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट. वापस वही लिखा है इन्होंने. And pass through the condenser and the pure liquid is collected in a receiver. After series of successive distillation, the remaining liquid in the distillation flask gets enriched in the high boiling component. Each successive condensation and vaporization unit in the fractionating, मुझे घंटा ला रहा है ये कराने में, इतना कितना लिखा हुआ है टाइम पास. Is called theoretical plate. इसका तो हमें लास्ट में नोट्स हम बना देंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसको पूरा. ओके, इट इज कॉल्ड theoretical plates. Commercially columns with hundreds of plates are available. तो ये हर एक प्लेट को हम क्या कहते हैं? theoretical plate कहते हैं, जहां पे हीट ट्रांसफर होता है और वेपर थोड़ा सा कंडेंस होता है, राइट. One of the technological application of this is the fractional distillation to separate the crude oil in petroleum industry. पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल टार. इन सबको सेपरेट करने के लिए भी डू दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, क्योंकि इन सबका बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास में होता है. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम अप्लाई होता है फॉर सेपरेशन ऑफ द क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री. कहां रखे इसको? लेट्स पुट इट हियर. चलो नेक्स्ट. नहीं दिख रहा है तो पर बाय. फ्लोटिंग हो गया. चलो नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस कॉलम, रिड्यूस प्रेशर. नेक्स्ट वन इज द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर. वेयर इज इट? हियर. अब कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो बॉइल होने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं. कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो बॉइल नहीं होते हैं और बॉइल होने से पहले ही क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं.
जैसे कि जस्ट फॉर द एग्जांपल लेट्स से ओके, सपोज मान लो कि देयर इज अ कंपाउंड ए, सपोज इस ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, बट ये डिकम्पोज हो जा रहा है 60 के ऊपर ही, इट डिकम्पोज एट 60 डिग्री सेल्सियस, तो फिर डिस्टिलेशन कैसे करेंगे? तुम तो जैसे इसको गर्म करोगे 60 पे ही तो डिकम्पोज हो जाएगा। नाउ व्हाट टू डू? सो हमें किसी तरह से क्या करना पड़ेगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट 60 के अंदर लाना पड़ेगा। हाउ कैन यू डू दैट? बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। यू हैव सीन दैट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर। जितना प्रेशर आप कम करोगे उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए जो फ्लास्क है उस फ्लास्क का प्रेशर रिड्यूस कर देंगे। प्रेशर रिड्यूस करने से ये कंपोनेंट 80 डिग्री से अंदर ही बॉइल होना चालू हो जाएगा। तो हमें यहां पे सिंपली क्या रखा है, देखो फिगर देखो इसका, see if you can see here, check out the figure here, okay? तो क्या दिख रहा है इस फिगर में आपको? एक वैक्यूम पंप दिख रहा है, अंधे हो गया। कैन यू सी द वैक्यूम पंप हियर? क्या काम है वैक्यूम पंप का? वैक्यूम पंप का काम है पूरे सिस्टम के प्रेशर को डिक्रीज कर देना। ये पूरा कनेक्टेड है, देखो ये पूरा सिस्टम ऐसे कनेक्टेड है, इसके साथ ऐसे 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 सब कुछ कनेक्टेड ही है। सो हम क्या करेंगे, वेपर यहां पे ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर देंगे बाय अप्लाइंग द वैक्यूम पंप। जैसे ही आप सिस्टम का प्रेशर डाउन कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट भी डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स नाउ द लिक्विड विल स्टार्ट बॉइलिंग बिलो इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट। तो इस एग्जांपल में अगर आप बाहर का प्रेशर डाउन कर दोगे फ्लास्क का बाय यूजिंग द वैक्यूम पंप, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लेस देन 80 हो जाएगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट विल बिकम 59 डिग्री। वो आपको डिसाइड करना है कि कितना प्रेशर आपको रखना है। You should know both the temperature, boiling point and decomposition temperature. Once you know both the temperature, you can decide कि कितना प्रेशर डाउन करना पड़ेगा इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर डिकम्पोजिशन टेम्परेचर से कम करना है तो, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रेशर सेट कर देते हो। Now let's read this. This method is used to purify the liquids having very high boiling points and those which decompose at or below their boiling point. The liquid which have very high boiling point or the liquid which will decompose below the boiling point. Such liquids are made to boil at a temperature lower than the normal boiling point by reducing the pressure. Right? On the surface, a liquid boils at temperature at which its vapor pressure is equal to the external pressure. ये definition है। Boiling point का pressure क्या होता है? तो the temperature at which vapor pressure become equal to atmospheric pressure. So if you decrease the atmospheric pressure, boiling point अपने आप क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। The pressure is reduced with the help of the water pump or a vacuum pump. अब important question, glycerol can be separated from the spent lye in a soap industry by using this technique. बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इस टेक्निक का एप्लीकेशन क्या है? To separate the spent lye in the soap industry, to separate the glycerol from the spent lye. राइट, सोप इंडस्ट्री में बचा कुचा जो ग्लिसरॉल होता है उसको रिकवर करने के लिए आप इस तरह से डिस्टिलेशन करते हो अंडर द रिड्यूस प्रेशर। सो वी हैव सीन 3 टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। सो यू मेक अ नोट्स ऑफ इट। डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन व्हाट? डिफरेंस इन, बेस्ड ऑन व्हाट? डिफरेंस इन बॉइलिंग point. So we have seen 3 distillations. One is simple distillation, other is fractional, and the next is under reduced pressure. Steam distillation भी है।
Okay, one more is there. Let's write about that also first. अब ये फाइल बहुत ज्यादा लोड ले रहा है. बेचारा मेरा फाइल. चलो, बहुत डेटा है इस फाइल में, फोटोज वोटोज कितना ज्यादा है. लेट्स सी वन मोर. स्टीम डिस्टिलेशन. नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय द स्टीम डिस्टिलेशन. हाँ, आधा क्यों है खाली. Okay, let's say the steam distillation. So beta, suno. So what you have just defined, you have defined the boiling point is the temperature at which. Boiling point वो temperature है जिस temperature के ऊपर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक जितना हो जाता है. अब यहां पे हम क्या करते हैं, सपोज मान लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेपर प्रेशर है सपोज 0.6 बार. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम गर्म कर रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर है 0.6 बार. तो अगर इसको बॉईल करना है तो आपका वेपर प्रेशर 0.6 से बढ़ा के 1 बार करना पड़ेगा, तभी जाके बॉईल होगा. तो हम क्या करेंगे, बाकी बचा हुआ जो वेपर प्रेशर चाहिए ना, वो हम ला देंगे स्टीम के पास से, और इन दोनों को मिला के टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा 1 बार, एंड दिस विल स्टार्ट बॉइलिंग. बेटा इफ यू कैन नॉट सिट यू कैन प्लीज, क्योंकि तू बहुत ज्यादा खांस रही है. आर यू ऑल राइट? बैठ पाएगी? ओके, चलो ध्यान यहां पे. चलो कोई नहीं, ध्यान यहां पे. तो देखो इसका टेक्निक इतना सही है खाली कि हम क्या करेंगे, स्टीम पास कराएंगे और स्टीम का जो प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर में ऐड हो जाएगा, और दोनों को मिला के प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक हो जाएगा देन दिस विल स्टार्ट बॉइलिंग. तो हमें इतना गर्म नहीं करना है, इसका प्रेशर हमें 1 बार तक नहीं ले जाना है. हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मली गर्म करेंगे और बाकी प्रेशर किससे सप्लाई कर देंगे, स्टीम से. So this is called steam distillation. Let's read the text for the steam distillation. क्या लिखा है चेक करते हैं. This technique is applied to separate the substances which are steam volatile and they are immiscible with water. क्योंकि अब जब इसका वेपर बनेगा ना तो स्टीम के साथ वो मिक्स होने वाला है. सो द कंपाउंड ऐसा होना चाहिए जो पानी के साथ केमिकली रिएक्ट ना करे, पानी के साथ मिक्स ना हो जाए, दोनों का वेपर सेपरेट रहना चाहिए. पानी का वेपर, स्टीम, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेपर बनेगा वो. सो इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड विच आर स्टीम वॉलेटाइल एंड दे आर इम्पॉसिबल विद वाटर. इन स्टीम डिस्टिलेशन क्या करेंगे हम, स्टीम फ्रॉम अ स्टीम जनरेटर इज पास थ्रू द हीटेड फ्लास्क कंटेनिंग द लिक्विड टू बी डिस्टिल. तो जो लिक्विड को डिस्टिल करना है उसके फ्लास्क में से स्टीम पास करेंगे. व्हाट विल हैपन, द मिक्सचर ऑफ स्टीम and the volatile organic compound is condensed and collected. So we will collect the steam as well as the volatile compound. जो organic compound है उसका भी वेपर बना होगा, steam भी बना है, दोनों को साथ में हम collect करेंगे. The compound is later separated from the water using a separation funnel. In steam volatile, अब देखना यहां पे technical part आ रहा है. In steam distillation, the liquid boils when the sum of the vapor pressure due to the organic liquid and due to the water become equal to the atmospheric pressure. When will the boiling start? When the total pressure में क्या आएगा, vapor pressure of organic compound as well as vapor pressure of steam. When the total pressure become equal to the atmospheric pressure, the boiling will start. ये इसका लॉजिक है, राइट? मतलब आपको इसको बहुत ज्यादा गर्म करने का काम नहीं है. Okay, is that P should be equal to P1 plus P2. Since P1 is lower than P, the organic liquid, देखो ये point, the organic liquid vaporizes at a lower temperature than its boiling point. As I told you, आपको अगर इसको अकेले को गर्म करना है तो आपको इसको और गर्म करके वेपर प्रेशर अकेले का 1 बार तक ले जाना पड़ेगा. अगर आप स्टीम की मदद नहीं ले रहे हो
तो आपको इस कंपाउंड को और गर्म करके इसका वेपर प्रेशर 1 बार तक करना पड़ेगा, तब जाके ये बॉईल होगा। बट हमने यहां पे क्या करा है, स्टीम ऐड कर दिया। तो अब हमें इसको गर्म करने का काम नहीं है, बाकी का जो बचा हुआ प्रेशर है वो कौन दे देगा, स्टीम दे देगा। और दोनों का मिलके प्रेशर जब बाहर जितना हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस विल स्टार्ट बॉइलिंग बिलो इट्स एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट, राइट। सो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करने के लिए या तो आप प्रेशर को रिड्यूस कराओ या तो फिर आप स्टीम को यूज करो। वेपर को प्रेशर को रिड्यूस कराने से भी बॉइलिंग चालू हो जाएगा कम टेम्परेचर पे, और स्टीम को इंट्रोड्यूस कराने से भी बॉइलिंग चालू हो जाएगा कम टेम्परेचर पे। डू गेट दिस? फाइन। Thus, if one of the substance in the mixture is water, क्या टाइम है? Why? I don't want to hear this reason from tomorrow. If one of the substance in the mixture is water and the other is water insoluble substance, then the mixture will boil close to but below 373 Kelvin. A mixture of water and the substance is obtained which can be separated by using a separating funnel. Example है इसका aniline is separated by this technique from the aniline water mixture. तो aniline के purification के लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है? We use the steam distillation method. तो चलो distillation का summary लिखते हैं. Where is it? Okay. So we have seen total 4 types of distillation. Simple distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure, and the last one is the steam distillation, right? चारों का कंसेप्ट क्या है? This is depends on the difference in boiling point. Okay, तो अगर boiling point में ज्यादा difference है, if boiling point differ by more amount, डायरेक्टली गर्म करेंगे on heating mixture, low boiling point compound will vaporize and condensed to separate from high boiling component. ठीक है, ये सिंपल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करेंगे? टू सेपरेट कंपोनेंट व्हेन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। क्या यूज करेंगे? वी विल यूज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। क्या करेगा ये कॉलम? इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर हीट ट्रांसफर। इससे क्या हो जाएगा? हेंस हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी कंडेंस्ड इन फ्रैक्शनल कॉलम, and only low boiling component reaches the condenser. Understood? Yes. इसका एग्जाम्पल क्या था बेटा? टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम। आपको होमवर्क में खाली यही लिखना है, ये समरी लिखना है आपको होमवर्क में, उतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, राइट? चलो, थर्ड वन इज अंडर रिड्यूस प्रेशर। किसके लिए यूज करेंगे? यूज फॉर फर्स्ट हाई बॉइलिंग लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, और द लिक्विड विच डिकम्पोज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड विच डिकम्पोज बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। सो हम क्या करेंगे? विल अप्लाई द वैक्यूम पंप।
reduce the pressure above surface of liquid, above the surface of liquid. इससे क्या हो जाएगा? therefore the boiling point of liquid also reduce, right? And then we do the distillation. Fine. Example क्या था इसका? Example क्या था? To separate glycerol from spent lye. To separate glycerol from spent lye. To separate the glycerol from spent lye. ठीक है? So the next one was steam distillation. So steam distillation किसके लिए यूज होगा? It is used for steam volatile and immiscible with water type of liquid. आएगा, एच भी आएगा. चलो क्या करेंगे यहां पे लॉजिक? टोटल प्रेशर में किस किस का होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्लस वाटर का, मतलब स्टीम का. लॉजिक क्या है? टोटल प्रेशर should become equal to atmospheric pressure. Total pressure should become equal to atmospheric pressure. That means liquid will boil below its boiling point. Liquid will boil below its boiling point. ये पूरा डिस्टिलेशन का चार्ट है. क्लियर है? ठीक है, आपको यही लिखना है होमवर्क में. नेक्स्ट, let's see what is next technique. Next technique आ रहा है differential extraction. This one is very simple. So differential extraction, it is simply used separating funnel. 9th में था separating funnel, if you remember. Let's say differential extraction. When an organic compound is present in an aqueous medium, it is shaking it with an organic solvent in which it is more soluble than in water. क्या कहा है? When an organic compound is present in an aqueous medium. अब aqueous medium में पानी के अंदर organic compound इतने डिसॉल्व होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस मिक्सचर के अंदर ऑयल डाल के उसको शेक करेंगे. ऑयल खुद ऑर्गेनिक होता है नेचर में, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में है वो किस में डिसॉल्व हो जाएगा? ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा. पानी से वो सेपरेट हो जाएगा. ओके, सो इट इज सेपरेटेड बाय शेकिंग विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सॉल्युबल देन इन वाटर. द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड द एक्वियस सॉल्यूशन शुड बी इमिसिबल विथ ईच अदर. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट. जो सॉल्वेंट आप डाल रहे हो, ऑयल जो आप डाल रहे हो, तो वो ऑयल पानी के साथ मिसिबल होना नहीं चाहिए, पानी से सेपरेट रहना चाहिए वो. ठीक है? Okay, the organic solvent, okay, then comes separatory funnel. Now the organic solvent is later removed by distillation or by evaporator to get back the compound. Differential extraction is carried out in a separatory funnel as shown in the figure. Where is separatory funnel? Which one? है कहीं पे? This one. This one is steam distillation. भाई ये देखो steam distillation. If you understand, ये आपका मेन फ्लास्क है और यहाँ पे आप स्टीम जनरेट कर रहे हो पानी गर्म करके. जो स्टीम जनरेट हो रहा है वो स्टीम कहाँ आ रहा है? इस पाइप के अंदर आ रहा है. देख लो, जो यहाँ पे आप स्टीम बना रहे हो वो स्टीम यहाँ पे आ रहा है. दिख रहा है? तो ये अलग से आपने स्टीम जनरेटर ले लिया एक, जहां पे पानी गर्म करके स्टीम बन रहा है और वो स्टीम आ रहा है इस फ्लास्क के अंदर. ओके, What was the time today? हाँ, खड़े रहना, बैठना मत. Okay, this one is a differential extractor. Now see, try to understand this. Suppose, listen, suppose ये फनेल में खून, suppose ये फनेल ऐसे,
ओके, अंडरस्टैंड। यहां पे पानी है और ये पानी के अंदर कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल है। पानी के अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, पानी के अंदर ऑर्गेनिक पार्टिकल डिसॉल्व होने नहीं है। तो हमने क्या करा, इसके ऊपर ऑयल डाल दिया। क्या डाल दिया हमने? ये ऑयल डाल दिया। ऑयल खुद ऑर्गेनिक होता है। जैसे ऑयल दिखेगा ये सारे पार्टिकल कहां पे आ जाएंगे? ऑयल में आ जाएंगे, राइट। पानी एकदम साफ हो गया। इस कॉक को यहां से ओपन करो, सारे पानी को बाहर निकाल लो, वाटर इज सेपरेटेड। अब जो बचा उसमें क्या है? ऑयल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑयल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप डिस्टिलेशन से भी सेपरेट कर सकते हो, वेपराइजेशन से भी सेपरेट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स कि उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ओके, तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। चलो, if the organic compound is less soluble in the organic solvent, then a very large quantity of the solvent would be required to extract even a very small quantity of the compounds. This technique is called as continuous extraction. In such cases, in this technique, some solvent is repeatedly used for extraction of the compound. अगर मान लो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑयल में ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है, देन तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा ऑयल यूज करना पड़ेगा और आपको बार बार एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट। तब जाके आप सारे कंपाउंड को पानी में से बाहर ला पाओगे। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। व्हाट इज इट कॉल्ड? कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। गॉट इट? लेट्स राइट अबाउट दिस। टिक करा है, वही लिखना है आपको इसके अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एन एक्वियस मीडियम separated by shaking with the organic solvent in which it is more soluble than in water, right। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बना है, टिक भी नहीं हो रहा है। The organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form the two distinct layers in which can be separated by separating funnel। मैंने यहां पे एक फिगर ड्रॉ किया था, क्यों निकाल दिया मैंने वो फिगर? चलिए, क्या है? पूरा पानी है यहां पे और ये कुछ पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, राइट। यहां ऊपर हमने ऑयल डाल दिया, दैट इज सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बहुत बेकार क्लास हालत है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तुरंत ही जैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आएगा, ये सारे पार्टिकल कहां चले आएंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सो व्हाट यू विल गेट ऑन शेकिंग इट? पानी पूरा साफ हो गया और सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहां पे आ गए? ऑयल में आ गए। सारे ऑर्गेनिक पार्टिकल कहां पे आ गए? ऑयल में आ गए। अब इसको ओपन करो, सारे पानी को बाहर निकाल दो, एंड दिस टू कैन बी देन सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन और इवेपोरेशन। ओके, अगर ये कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो रहा है ऑयल में, तो आपको बहुत ज्यादा ऑयल यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको बार बार एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। अंडरस्टूड? तो ऐसे टॉपिक्स है ना, आपको जब आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करोगे ना, तो ऐसे टॉपिक को आपको टेक्स्ट बुक में से रिवाइज करना है और याद करने की कोशिश करनी है कि इसका लॉजिक क्या है। यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। इसको आप रट्टा नहीं मार सकते, आप लॉजिक के हिसाब से इन थियरीज को लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैंने जितना टिक करा है उतना सारा आपको यहां पे लिख देना है। ओके, नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्रोमेटोग्राफी, हाँ ऊपर था नहीं। आई वांट टू फिनिश दिस टॉपिक फर्स्ट। कहां गया क्रोमेटोग्राफी? इतना ऊपर है। चलो पहले क्रोमेटोग्राफी को ले लेते हैं, यहां पे रेडी करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। Wait a minute, everyone.
ऊपर भी था कुछ? हाँ, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। ये क्या हुआ? आई है जो रात नशीली, नशे की हर एक बात तू भी आ कर ले नशे। तो क्या हुआ? हैंग हो गया? तो पूरा ही स्क्रीनशॉट हो गया। ए लसन लोग चुप बैठो ना। थिंक इट इज अ ब्रेक। थिंक इट इज अ ब्रेक ऑफ 3 minutes till I complete this topic. मजा आ रहा है ना? Such a boring life, such a boring people. ओ भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा है यार। क्रोमेटोग्राफी देखो ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रोमेटोग्राफी। राइट, क्रोमा मतलब कलर and the graphy means a technique of separation. So this technique was first used to separate the colors from the pigment. बायो में था ना ऐसा? ये वही टॉपिक है, बायो का ही टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। Let's see. Chromatography is an important technique exclusively used to separate the mixture into their components, purify compounds, and also to test the purity of the compounds. The name chromatography is based on, थोड़ा बाहर से बेटा, हाँ, the name chromatography is based on the Greek word chroma. क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। ग्रीक वर्ड क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है कलर। सिंस द मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड सब्सटेंसेस फाउंड इन प्लांट्स। In this technique, the mixture of substance is applied onto a stationary phase, which may be solid or liquid. A pure solvent or a mixture of solvent or a gas is allowed to move slowly over the stationary phase. तो यहां पे दो चीजें होती है, एक होता है स्टेशनरी फेस, दूसरा होता है मोबाइल फेस, मूविंग फेस, राइट? ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर गेट्स ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सचर है उस मिक्सचर को हम कहां अप्लाई कर देंगे? स्टेशनरी फेस के ऊपर। स्टेशनरी फेस मतलब काइंड ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर है और उस पेपर के ऊपर हमने मिक्सचर का ड्रॉप रख दिया। जिस मिक्सचर को सेपरेट करना है उसका एक ड्रॉप हमने वहां पर रख दिया पेपर पे, और इस पेपर को हम सुटेबल सॉल्वेंट में डाल देंगे ताकि सॉल्वेंट ड्रॉप के बाहर रहे। सॉल्वेंट बाहर रहना चाहिए, ड्रॉप बाहर रहना चाहिए, ठीक है? नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन, ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चालू करेगा, और जब ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा इसको डिसॉल्व करेगा। जो सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगा लिक्विड के अंदर वो सबसे ऊपर जाएगा,
जो सबसे कम डिसॉल्व होगा वो पहले ही सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो कंपोनेंट होंगे इसके अंदर वो अलग अलग लेवल पे सेपरेट हो जाएंगे। दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। तो ये कौन सा कंपोनेंट? दिस इज अ कंपोनेंट विच इज मोस्ट सॉल्युबल, जो सबसे ऊपर तक पहुंचेगा। एंड दिस वन इज कॉल्ड लीस्ट सॉल्युबल कंपोनेंट, जो सबसे नीचे ही अलग हो जाएगा। राइट, तो ये आपका स्टेशनरी फेस है। इसके ऊपर हम मिक्सचर अप्लाई करेंगे और इसे कहते हैं मोबाइल फेस, जो ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे। इट कैन बी सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, और इट कैन बी अ गैस। नाउ रीड दिस पैरा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज रिटन हियर। मिक्सचर इज अप्लाइड ऑनटू अ स्टेशनरी फेस। Mixture is applied onto a stationary face, which may be solid or liquid. Right now it is solid, paper लिया है हमने. Then a pure solvent, a mixture of solvent or a gas is allowed to move slowly over the stationary face. This liquid is allowed to move slowly over the stationary face paper. What will happen? The components of the mixture will get gradually separated from one another. The moving face is called the mobile face. So मैं यहाँ पे लिखा moving face is called mobile face. समझ गए आप? तो स्टेशनरी फेस के ऊपर मिक्सचर रखेंगे और जो मोबाइल फेस होगा उसको धीरे धीरे उस स्टेशनरी फेस से पास होने देना है। पास होते ही अलग अलग कंपोनेंट जो है वो मिक्सचर के सेपरेट हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, वन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अदर इज कॉल्ड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लेट्स सी व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ पार्टीशन। ये थिन पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पहले चेक करो एब्जॉर्प्शन क्या है। तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज वेरी सिंपल। देखो इसका टेक्निक समझ लो जरा। दिस वन इज द एब्जॉर्प्शन और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन में क्या लिखा है? एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है ये कॉलम। सो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड्स आर एब्जॉर्ब ऑन एन एब्जॉर्बेंट ऑन टू डिफरेंट डिग्रीज। अब जो एब्जॉर्प्शन लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन एडी, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस। 12th में इसका पूरा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। एब्जॉर्प्शन खाली कहां पे होता है? सरफेस के ऊपर ही होता है। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस। राइट, तो अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग एब्जॉर्बेंट के ऊपर अलग अलग क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्बेंट होता है जनरली सिलिका होता है, चारकोल होता है। राइट, तो कुछ कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ कंपोनेंट कम क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होते हैं। राइट, सो इट इज बेस्ड ऑन द fact that different compounds are adsorbed on an adsorbent to different degrees. Some adsorb more, some adsorb less. Commonly used adsorbent कौन सा यूज करेंगे? We will use silica gel and alumina. When the mobile face is allowed to move over a stationary face, stationary face क्या होगा? adsorbent होगा। The components of the mixture move by varying distance over the stationary face. Following are the two main types of chromatography technique based on principle of differential absorption. दो टेक्निक है, एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है तीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये तीन लेयर है। एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करेंगे? एक पाइप लेंगे और उस पाइप के अंदर हम एब्जॉर्बेंट भर देंगे। लेट्स से इसके अंदर हमने सिलिका जेल या एल्यूमिना भर दिया पूरा, और ऊपर से आपको सॉल्वेंट डाल देना जो आपका मिक्सचर है। मिक्सचर आपका यहां पर है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड एबीसी, ऊपर डाल दिया, ये एब्जॉर्बेंट है। नीचे क्या है? एब्जॉर्बेंट जो स्टेशनरी रहेगा, सिलिका जेल या चारकोल है ये। उसके ऊपर जो मिक्सचर को सेपरेट करना है रख दिया हमने, और उसके ऊपर डाल देना है सॉल्वेंट। अब होगा क्या? सॉल्वेंट जैसे जैसे नीचे उतरेगा ये कंपाउंड को भी डिसॉल्व करके लेके जाएगा। अब ये कंपोनेंट जो है वो, ये जो मिक्सचर है उसमें से अलग अलग कंपाउंड इसके ऊपर एब्जॉर्ब होंगे। जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, जो सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, वो ऊपर ही सेपरेट हो जाएगा। तो अगर ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो ए देखो पहले ही सेपरेट हो गया, बी और सी और नीचे जाएंगे। अब अगर बी एब्जॉर्ब हो रहा है तो बी अलग लेयर बनाएगा, सी और नीचे जाएगा, और सी सबसे लास्ट में सेपरेट होगा। तीनों कंपोनेंट सेपरेट हो गए। सो इट इज सिंपली कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। क्या है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में? वी हैव दी कॉलम ऑफ एब्जॉर्बेंट, उसके ऊपर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, उसके ऊपर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नीचे जाएगा, कंपाउंड को भी लेके जाएगा, और अलग अलग कंपाउंड अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग लेवल पे क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, जो कम एब्जॉर्ब हो रहा है वो नीचे सेपरेट होगा। सो कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। अंडरस्टूड? कौन सा क्रोमेटोग्राफी बेटा? ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लेट्स सी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर
over a column of adsorbent packed in a glass tube. Column is fitted with a stopcock at its lower end. You can see the stopcock is on. The mixture adsorbed on the adsorbent is placed on the top of the adsorbent column packed in glass tube. Then an appropriate eluent matlab solvent, which is a liquid or a mixture of liquid, is allowed to flow down the column slowly. So we have the column of adsorbent on which we will place the mixture to be separated, on which we will place the solvent. Now what will happen? Depending upon the degree of which the compounds are adsorbed, the complete separation take place. The most readily adsorbed substance are retained near the top. जो सबसे पहले adsorb होगा वो सबसे ऊपर ही रह जाएगा, और जो adsorb उसके बाद होगा वो और नीचे जाएगा, और जो सबसे लास्ट या सबसे कम adsorb जो होगा वो सबसे नीचे जाएगा. तो इस तरह से आपने अलग अलग कंपोनेंट को कर दिया सेपरेट. You get this? Yes. Understood? Yes. Okay. Now thin layer chromatography जो हमने आगे किया पेपर वाला वो chromatography, you can see this here. इसमें नहीं है फिगर 3 लेयर का, हम खा गए. Okay, let me bring it from here. This one मैंने लिया था ये फिगर. चल लेट्स से 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC. बहुत सिंपल सा है ये भी. बेटा कॉलम में क्या करा है हमने? हाँ, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या करा है हमने? कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमने एक ग्लास का पाइप लेके उसके अंदर पहले एड्सॉर्बेंट भर दिया, उसके ऊपर मिक्सचर डाला, उसके ऊपर सॉल्वेंट डाला. सॉल्वेंट अलग अलग कंपोनेंट को नीचे ले गया, और जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होगा वो पहले सेपरेट हो गया, और जो सबसे बाद में एड्सॉर्ब होगा वो लास्ट में गया. दैट्स अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जहां पे हमने कॉलम लिया है एड्सॉर्बेंट का. Now in thin layer chromatography we take a thin layer, matlab we'll take a paper of filter paper, layer of filter paper, right? Let's see. Thin layer chromatography is another type of adsorption chromatography which involves the separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on a glass plate. तो इसमें हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं, या फिर आप एक पतली सी ग्लास के प्लेट के ऊपर एड्सॉर्बेंट का लेयर लगा सकते हो. राइट. नॉर्मली केस के अंदर बायो वाले ने जब किया होगा तो उन्होंने फिल्टर पेपर लेके ही किया होगा. क्रोमेटोग्राफी पेपर एक टाइप का फिल्टर पेपर ही होता है. राइट. ओके, चलो. सो वी हैव अ थिन लेयर, एकदम पतला सा लेयर बनाएंगे एड्सॉर्बेंट का ग्लास के प्लेट के ऊपर. वी हैव अ थिन लेयर ऑफ एन एड्सॉर्बेंट इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट. तो एक थिन लेयर को ग्लास प्लेट के ऊपर हम कोट कर देंगे. दिस प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, और वी कॉल इट द क्रोमा प्लेट. चलो अब क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन का मिक्सचर सेपरेट करना है उसका एक ड्रॉप लगा देंगे उस प्लेट के ऊपर. द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर अबव वन ऑफ द एंड ऑफ प्लेट. ये रहा आपका प्लेट. राइट. और यहां पे आपको क्या करना है, स्पॉट लगा देना. ये पहले ये वाला फिगर देखो, ये तो लिक्विड ऊपर चढ़ चुका है. ओके, ये वाला फिगर देखो, ये आपका प्लेट है, उसके ऊपर आपने छोटा सा ड्रॉप लगा दिया, सैंपल डॉट, करीब 2 सेंटीमीटर ऊपर, और इससे यहां पे एक लाइन बना लेने, उसे हम बेस लाइन कहेंगे. राइट. द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड एज अ स्मॉल स्पॉट 2 सेंटीमीटर अबव वन ऑफ द एंड ऑफ द प्लेट. अब क्या करेंगे, इस ग्लास प्लेट को हम डाल देंगे इन अ क्लोज जार कंटेनिंग इल्यूएंट मतलब सॉल्वेंट. As the eluent rises of the plate, the components of the mixture move up along with the eluent to different distances depending upon the degree of adsorption, and the separation take place. तो जो सबसे अच्छे से एड्सॉर्ब हो जाएगा वो पहले ही अलग हो जाएगा, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो और ऊपर जाएगा, और सबसे लास्ट में जो एड्सॉर्ब होगा वो सबसे ऊपर जाएगा. कॉलम में क्या करना है, कॉलम के अंदर सब कुछ ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, और थिन लेयर में सब कुछ नीचे से ऊपर जा रहा है, और कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है. कॉलम में पाइप के अंदर एड्सॉर्बेंट डालना है, यहां पे पेपर के ऊपर एड्सॉर्बेंट का लेयर बनाना है, और उसके ऊपर डॉट डाल के उसको सॉल्वेंट में रख देना है, और सॉल्वेंट धीरे धीरे कहां चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा. राइट. नाउ वी हैव हियर RF वैल्यू. RF इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन फैक्टर. तो रिटार्डेशन फैक्टर का मतलब वेरी सिंपल, डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन.
ओके, लेट्स से सपोज ये आपका बेस लाइन है और कोई एक पर्टिकुलर कलर सपोज यहां पे आके सेपरेट हो गया और सॉल्वेंट ओवर और यहां तक ऊपर गया है, तो सॉल्वेंट जो बेस लाइन से ऊपर गया उसे कहेंगे y, और कंपोनेंट जहां पे सेपरेट हुआ है उसको कहेंगे x। कंपोनेंट देखो, सबसे ऊपर तक सॉल्वेंट जाएगा और सॉल्वेंट सबको बीच बीच में छोड़ते 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 जाएगा, आगे ना, सॉल्वेंट सबसे ऊपर जाएगा और बीच बीच में सबको छोड़ते छोड़ते जाएगा, राइट। तो सॉल्वेंट जितना ऊपर चढ़ा है उसे क्या कहेंगे y, और कंपोनेंट जहां तक पहुंचा है उसे क्या कहेंगे x। तो ये x और y का जो रेशियो है उसे क्या कहेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर, दैट इज द डिस्टेंस मूव बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन टू द डिस्टेंस मूव बाय द सॉल्वेंट। सब्सटेंस जो मूव करेगा डिवाइड बाय सॉल्वेंट जो मूव करेगा। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है क्रोमेटोग्राफी? बहुत थियोरिटिकल टॉपिक है ये पूरा। Okay, now the spot of the color compounds are visible on TLC plate due to the original color. The spot of the colorless compound, अगर compound colorless है तो उसके ऊपर हम fluorescent light डालेंगे, which are visible to eye but the fluorescence in UV light. कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमें naked eye से visible नहीं होते हैं, तो उसके ऊपर जब fluorescent light डालेंगे तो कुछ अलग अलग कलर बन के आएंगे, right? Okay, okay, fluorescence in UV light can be detected by putting the plate under the UV light. Another detection technique is to place the plate in a covered jar containing a few crystals of iodine. Right, आपने प्लेट सेपरेट कर लिया, प्लेट बना दिया, उसके बाद कुछ कलर आपको नहीं दिख रहे क्योंकि उसका रेंज विजिबल रीजन से बाहर है, तो या तो आप उसके ऊपर यूवी लाइट डालो, वो फ्लोरोसेंस करेंगे, या तो फिर आप उस प्लेट को आयोडीन वाले जार में रख दो। आयोडीन क्या करेगा, स्पॉट ऑफ कंपाउंड विल एब्जॉर्ब आयोडीन, आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा एंड दिस शोज द ब्राउन कलर। तो जहां जहां पे प्लेट के ऊपर सपोज यहां पे कोई कलर है जो हमें नहीं दिख रहा है, अब जैसे इसको आयोडीन के सॉल्यूशन में डाल दोगे वो क्या करेगा, आयोडीन गैस को एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे आयोडीन एब्जॉर्ब होगा यहां पे ब्राउन कलर बनेगा, राइट। तो यू कैन ऑल्सो यूज द आयोडीन, okay, because spot of the compound will absorb the iodine and will show up the brown spot. Sometimes an appropriate reagent may also be sprayed on the plate. कुछ reagents spray करे जाते हैं, for example amino acids may be detected by spraying the plate with the ninhydrin solution. तो अगर अमीनो एसिड आपने सेपरेट किया है तो आप क्या करोगे, प्लेट के ऊपर एक रिएजेंट आता है ninhydrin, वो स्प्रे करोगे तो अलग अलग आपको कलर दिखेंगे अमीनो एसिड के, राइट। So chromatography is based on the adsorption. Chromatography is based on adsorption, right? अलग अलग कलर्स, चलो पहले ये देख लेते फिर एक बार रिवाइज कर लेते। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी लास्ट वन से ये सिमिलर ही है, यहां पे प्लेट की जगह पे पेपर को रोल करके रखना है और कुछ फर्क नहीं है। प्लेट की जगह क्या करना है, आपको पेपर को रोल करके रखना है, और यहां पे आपने क्या करा है, पेपर को पेपर के फॉर्म में ही रख दिया, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, और यहां पे रोल करके रखा है। ये पूरा टाइम पास टॉपिक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेस। चलेगा नहीं याद रखोगे तो। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी अ स्पेशल क्वालिटी पेपर नोन एज chromatography paper is used. Chromatography paper contains water trapped in it, which act as a stationary phase. So we have the special chromatography paper, and this paper contains water. तो पहले से अंदर ट्रैप होता है, right? Now a strip of chromatographic paper spotted at the base with the solution of the mixture is suspended in the suitable solvent और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट, जैसे आगे किया था हमने, प्लेट के ऊपर डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के उसको सॉल्वेंट में रख देंगे। ओके, दिस सॉल्वेंट एक्ट एज अ मोबाइल फेस, सॉल्वेंट धीरे 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 ऊपर आएगा, दैट्स मोबाइल फेस। सॉल्वेंट राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट। द सॉल्वेंट विल राइजेस अप द पेपर बाय कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट। द पेपर विल सिलेक्टिवली रिटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू their differing partition in the two faces. The paper strips to develop is known as chromatogram. जो पेपर स्ट्रिप डेवलप होगा उसे क्या कहेंगे, क्रोमेटोग्राम।
The spots of the separated colored compounds are visible at different height from the position of the initial spot on the chromatogram. सेम अब आगे वाला भी लिख दोगे तो भी चलेगा, right? The spots of separated colorless compound may be observed there under the UV light or by appropriate spray reagent as discussed under the thin layer chromatography. So अगर एक बार वापस देखें पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर में फर्क क्या है. कॉलम एंड थिन लेयर बहुत ही क्लियर है. कॉलम में हम कॉलम लगाएंगे, ऊपर उसके ऊपर कंपाउंड मिक्सचर, उसके ऊपर सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे आएगा, अलग अलग लेयर्स अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाएंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी में ग्लास के प्लेट के ऊपर एब्जॉर्बेंट का लेयर लगा दिया, उसके ऊपर आपने सॉल्वेंट का डॉट रख दिया, सॉल्वेंट का नहीं मिक्सचर का डॉट रख दिया, फिर उसको सॉल्वेंट में रख दिया. सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग हाइट पे सेपरेट किया, राइट. 3 लेयर के अंदर वो आया था पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर. ओके, इट इज अ कंटिन्यूअस पार्टीशनिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बिटवीन द स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस. मुझे तो सेम ही लग रहा है. इट इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इट इज वन टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस वन, right? In the paper chromatography, we use a special type of the paper known as chromatography paper. It contains the water trapped in it. तो पेपर के अंदर पहले से थोड़ा पानी ट्रैप्ड होता है, which act as a stationary phase. तो यहां पे स्टेशनरी फेस कौन है? क्रोमेटोग्राफिक पेपर. और अंदर जो पानी है that is also right. A strip of chromatography paper spotted at the base विद सॉल्यूशन. तो प्लेट के ऊपर हम नीचे डॉट लगा देंगे सॉल्यूशन से, राइट, और फिर उसको रख देंगे सुटेबल सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर आएगा, राइट, बाय द कैपिलरी एक्शन एंड फ्लोज ओवर द स्पॉट. ये पेपर क्या करेगा? पेपर के अंदर भी पानी है पहले से. पेपर के अंदर पानी को आपने ट्रैप करके रखा है, तो ये पेपर क्या करेगा? पेपर विल सिलेक्टिवली रिटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग पार्टीशन इन द 2 फेसेस. तो जो पेपर है वो कुछ कंपोनेंट को क्या करेगा? रिटेन करेगा, राइट. इतना कुछ है नहीं, डिटेल में समझने जैसा है इसमें. द पेपर स्ट्रिप्स ऑफ डेवलप इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफ. और अलग अलग कलर जो है वो सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग हाइट के ऊपर. तो ये 2 पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है. स्पेशल टाइप का पेपर होगा विच ट्रैप दी वाटर इनसाइड इट. डॉट रखेंगे मिक्सचर का, सॉल्वेंट में डालेंगे, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा धीरे धीरे, मोबाइल फेस, राइट. और स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, राइट, दोनों क्या करेंगे? अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग मात्रा में कैरी करेंगे और यू कैन से रिटेन करेंगे, राइट. अगर पानी अच्छे से रिटेन कर रहा है तो वो कंपोनेंट उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि पेपर में क्या है? पानी है. और अगर पानी रिटेन नहीं कर पा रहा है तो सॉल्वेंट के साथ वो कंपोनेंट कहां जाएगा? ऊपर जाएगा. अगर पानी रिटेन कर पा रहा है तो कंपोनेंट उसी लेवल पर रह जाएगा, और अगर पानी उसको रिटेन नहीं कर पा रहा है तो सॉल्वेंट उसको कहां ले जाएगा? कंपोनेंट को ऊपर ले जाएगा. यू कैन सी दिस. द सॉल्वेंट राइजेस अप, द पेपर सिलेक्टिवली रिटेन्स द डिफरेंट कंपोनेंट. पेपर खुद क्या करेगा? इट विल रिटेन सिलेक्टिवली डिफरेंट कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द डिफरिंग पार्टीशंस इन द 2 फेसेस. 2 फेसेस मतलब एक आपका स्टेशनरी फेस जो पानी है, दूसरा मोबाइल फेस जो सॉल्वेंट है. These are about the all purification techniques of the organic compounds, right? बहुत सारे टेक्निक्स है.